Very good morning, dear students. I am your Dharmendra sir from English Learning Portal. Today I am going to elaborate a chapter which is taken from Footprints Without Feet, and this one is a supplementary reader book for class 10th student. Name of the chapter is A Triumph of Surgery, written by James Herriot. स्टोरी का नाम क्या है? अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, और किसने लिखा है? जेम्स हेरियट ने लिखा है. सो हियर ट्रिम्फ मीन्स विक्ट्री, जीत, एंड सर्जरी refers to a veterinary hospital. So before starting this chapter, just I would like to give you a small glance of this one. There was a pet dog. Due to overfeed, he became so fatty. And after some time, he became ill. And for that reason, he needed to admit in the hospital, a veterinary hospital, where doctor treated him. And now he became okay and lively. That's why the name of the chapter is A Triumph of Surgery. एक पालतू कुत्ता था. बहुत खाना खाने के कारण वो मोटा हो गया था. कुछ दिनों के बाद वो बीमार पड़ गया. बीमार पड़ने के कारण उसे फिर वेटनरी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, और उसके बाद वो जब हॉस्पिटल से निकला तो वो ठीक हो चुका था. इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा है? अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? So this one is a small introduction about the pet dog. The name of the pet dog is Tricky. Pet dog का नाम क्या रहता है? Tricky नाम रहता है. और ये इसकी मालकिन जो होती है वो अमीर रहती हैं, और इसके कारण क्या होता है? इसको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार मिलता है और ये बहुत ज़्यादा खाता है. वह अब क्या हो जाता है? बहुत ही सीरियसली बीमार भी पड़ जाता है. अब उसकी जो मिस्ट्रेस हैं, उसकी जो ऑनर है, वो एक वेटनरी डॉक्टर से, वेटनरी सर्जन से कंसल्ट करती है. क्या वहां पर इसका ऑपरेशन होता है? क्या डॉग रिकवर हो पाता है? Now your main chapter start. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. So here I refers to a veterinary doctor, and as I dictated, Tricky is the name of pet dog. यहां पर क्या होता है? डॉक्टर जब इस बार ट्रिकी को देखते हैं तो रियली में बहुत ज्यादा चिंता में आ जाते हैं, और इसके लिए इन्होंने क्या किया? अपनी गाड़ी को रुका. जब इन्होंने देखा कि गली में ट्रिकी अपने मिस्ट्रेस, अपने ऑनर के साथ है, और इसे देखकर, मीन्स ट्रिकी के अपीयरेंस को देखकर डॉक्टर को बहुत ज्यादा चिंता होती है. वो शॉक्ड हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं. क्यों? क्योंकि यहां पर ट्रिकी क्या है? मोटा हो चुका है. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. Sausage means a non-vegetarian food item, और ये क्या होता है? एक cylindrical length में होता है. तो here doctor dictated about the appearance of this pet dog, about the Tricky. Tricky का appearance बता रहे हैं. यह अब क्या हो गया है? बहुत ज्यादा मोटा हो गया है. जैसा आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, ट्रिकी क्या हो गया? मोटा हो गया है. और कैसा लग रहा है? मानो जैसे एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह लग रहा हो, फूले हुए सॉसेज की तरह लग रहा है. और इसके चारों तरफ क्या दिख रहे हैं? पैर दिख रहे हैं. इसकी आंखें भी क्या हो गई है? लाल हो गया. ब्लड शॉट का अर्थ होता है खून की तरह लाल होना. र्यूमी मीन्स A watery discharge especially comes from nose और eyes. जब पानी निकलता है नोज और आइज से तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? र्यूमी कहते हैं. तभी ट्रिकी का क्या हो रहा है? आंख भी लाल है. इसके नोज और आइज से क्या हो रहे हैं? वाटर डिस्चार्ज हो रहे हैं. और इसकी जीभ जो है ये भी क्या है? बाहर निकली हुई है. मीन्स दे ऑल आर द सिम्टम्स दैट ट्रिकी इज नॉट फिट. ट्रिकी अच्छा नहीं है. Mrs. Pumphrey hastened to explain.
He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bottle of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. Here, Mrs. Pumphrey, name of Tricky owner. ट्रिकी की ऑनर का नाम क्या है? मिसेज पम्फ्री। और वो क्या करती है, वो एक्सप्लेन करती है सिचुएशन को, क्योंकि यहां पे ट्रिकी क्या लग रहा था, बहुत थका थका सा लग रहा था। लिस्टलेस का अर्थ होता है लैकिंग एनर्जी, और ऐसा लग रहा था मानो जैसे एनर्जी ना हो उसके पास। इसलिए यहां पे मिसेज पम्फ्री को क्या लग रहा है कि शायद इसके पास मलन्यूट्रिशन की कमी है, मीन्स विटामिन की कमी है। इसके लिए वो क्या करती हैं, खाने के बीच में, मील के बीच बीच में क्या करती हैं, वो इसको कुछ एक्स्ट्रा देती हैं, जिससे कि ये खुद को, ट्रिकी अपने आप को बिल्डअप कर सके, मीन्स ठीक कर पाए। किस किस टाइप का खाना देती हैं, किस किस टाइप का मील देती हैं? सम मॉल्ट। मॉल्ट किसे कहा जाता है? विच वी कैन मिक्स इन मिल्क, जिसे हम मिल्क में मिक्स करके पीते हैं, लाइक बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, दे ऑल आर योर मॉल्ट। कॉड लिवर ऑयल किसे कहा जाता है? विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ कॉड फिश। कॉड फिश से जो लीवर में से जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑयल को, उसे ही कॉड लिवर ऑयल कहा जाता है। तो इसको रात में क्या मिलता है? मॉल्ट भी मिलता है, कॉड लिवर ऑयल मिलता है, हॉर्लिक्स मिलता है, जिससे कि ये रात में अच्छे से सो पाए। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं देती, नथिंग मच रियली। नाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाई ट्रिकी वाज सो मच फैटी। ट्रिकी क्यों ज्यादा मोटा हो गया था? दे ऑल आर द रीजन फॉर फैटी। यही सब एक रीजन था जिसके कारण ट्रिकी क्या था, मोटा हो गया था। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू? हियर मिस्टर हेरियट मिस डॉक्टर कह रहे हैं, क्या आपने जो ये मीठा खाता था, क्या आपने इसको बंद किया है? ओह आई डिड फॉर अ बिट, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. He does love cream, cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. अब यहां पे क्या कर रही है डॉक्टर ने, जबकि इसको मना किया हुआ था, जो आप ट्रिकी को स्वीट थिंग्स मत दो, मीठा चीज खाने को मत दो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा था जो ट्रिकी क्या हो रहा है, बहुत ही कमजोर हो रहा है, सो वीक हो रहा है। सो ये खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाई अपने इस कठोर व्यवहार को, क्योंकि इनको पता था जो ट्रिकी क्या है, इसको क्रीम, केक्स, चॉकलेट्स ये पसंद है। तो ये ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाई, और क्या किया गया, इसको क्रीम, केक्स, चॉकलेट्स दिया गया ट्रिकी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. दैट वाज द ट्रबल. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned. यहां पे फिर से डॉक्टर जो है वो लिटिल डॉग को, कुत्ते को देखते हैं, ट्रिकी को देखते हैं, और वो कहते हैं बस यही प्रॉब्लम है. दैट वाज द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या था? सबसे पहली बात थी जो ट्रिकी की सिर्फ एक ही गलती थी कि वो क्या था, लालची था, और वो कभी भी खाने को मना नहीं कर पाता था. वो कभी भी मील को लेता था, चाहे वो दिन या रात के किसी भी घंटे में दिया जाए, तो ट्रिकी खाना पसंद करता था. और साथ में यहां पर डॉक्टर को एक आश्चर्य भी है, चिंता भी है कि बहुत सी ऐसी भी बातें होंगी जो पम्फ्री ने बताया नहीं है कि वो खाने में, मील में और क्या क्या देती. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? क्या आप ट्रिकी को एक्सरसाइज करवाती हैं? जो एक्सरसाइज, आई थिंक द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हिम सम एक्सरसाइजेज. दैट्स व्हाई डॉक्टर आस्क्ड हिम, क्या आप इससे, क्योंकि इसको खाना बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो क्या ये एक्सरसाइज ट्रिकी कर भी रहा है? विल ही हैज his little walks with me, as you can see, but Hawking the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. So here Mrs. Pumphrey dictated about the situation, about the exercises. वो बताती हैं, हाँ ये छोटा छोटा सा वॉक करता है, जैसा कि आप देख सकते हो. और हॉकिंग का कौन होता है? गार्डनर होता है. और वो किस चीज से सफर कर रहा है? लंबैगो से. लंबैगो क्या होता है?
जब आपके पीछे, पीठ के पीछे वाले हिस्से में, लोअर पार्ट में, जब आप पेन बहुत ज़्यादा होता है, पेन होता है, मस्कुलर पेन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लंबैगो कहते हैं। तो अभी वो उस चीज़ से सफ़र कर रहा है, इसीलिए रिंग थ्रोइंग मीन्स इस टाइप का गेम होता है। ये गेम अभी क्या हो रहा है, क्योंकि उसके गार्डनर के पीठ के पीछे में लोअर पार्ट में पेन हो रहा है, इसलिए ये गेम भी अभी नहीं हो रहा है रिंग थ्रोइंग का। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his foot right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. So here doctor is much more serious. Severe means very serious. तो डॉक्टर ने जब ये बात सुनी, वेटरनरी डॉक्टर ने ये बात सुनी, तो वो काफ़ी सीरियस अंदाज में, काफ़ी सीरियस मूड में बोले कि मेरे कहने का ये मतलब है, रियली आई मीन दिस, कि अगर आपने इसका फुट अभी कभी कट डाउन नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी ये रियली में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। ही इज गोइंग टू बी रियली इल। और इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपना दिल मजबूत करना होगा, हार्ड करना होगा, और उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवानी होगी। मिसेस पॉम्फ्री wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right. But it is so difficult, so very difficult. She set off, head down, along the road, as if determined to put the new rhythm into practice immediately. So here, Mrs. Pumphrey accepted the fact about the tricky. और रंग का अर्थ क्या होता है, हाथ को हिलाना। और वो क्या कर रही हैं, हाँ मैं करूंगी मिस्टर हेरियट, आई एम श्योर, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन यह क्या है, एक डिफिकल्ट काम है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है। रिज्म का अर्थ क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, मीन्स जैसा डॉक्टर बताते हैं एक्सरसाइज और डाइट, उस चीज के बारे में, उस चीज को क्या कहा जाता है, रिज्म कहा जाता है। और अब क्या रहता है, मिसेज पेम्फ्री का हेड डाउन रहता है, रोड के साथ ही चलती रहती है, और ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो अब ये डिटरमाइन हो चुकी हूं कि अब ऐसा ही वो फॉलो करेंगे, ऐसा ही प्रैक्टिस में लाएंगी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. So here, doctor was much more concerned about the Tricky. Tricky के बारे में उनको बहुत ज़्यादा चिंता भी हो रही है। और टॉटरिंग का अर्थ क्या होता है, सुस्त अंदाज में, अनस्टेडी मैनर में आगे चलना, बढ़ना। ट्वीड किसे कहा जाता है, ट्वीड एक वुलन क्लॉथ होता है। तो यहां पे क्या है, ट्रिकी जो है वो बहुत सुस्त अंदाज में पीछे पीछे चल रहा है मिसेस पम्फ्री के, और वो उसने क्या पहना हुआ है, एक ट्वीड कोट पहना हुआ है, और इसके पास बहुत सारे कोट्स हैं। ठंड के महीने के लिए अलग है, बारिश के महीने के लिए इसके पास एक रेन कोट भी है। ड्रूपिंग का अर्थ क्या होता है, नीचे की ओर झुका होना, बेंड डाउनवर्ड्स। और हार्नेस क्या होता है, स्ट्रैप्स, जो कुत्ते के गले में, डॉग के गले में लगा होता है। तो अब इसका क्या है, सर क्या है, नीचे की ओर झुका हुआ है। और यहां पर डॉक्टर वो अब ये जान रहे हैं कि ज्यादा समय नहीं है कि इन्हें मिसेस पम्फ्री कांटेक्ट करेगी। मीन्स हियर डॉक्टर वेल अवेयर अबाउट द ट्रिकी, ही न्यू that very soon Tricky is going to be a serious ill. The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, panting. Didn't want to go for walks, didn't want to do anything. So here, doctor as expected, that very soon Mrs. Pumphrey will contact him, and as per the expectation, he received the call. क्योंकि डॉक्टर को पहले से ही उम्मीद थी, अंदाज भी था जो मिसेस पम्फ्री उन्हें कॉल करेगी, और ठीक उसी तरह कुछ ही दिनों के भीतर में मिसेस पम्फ्री ने उन्हें कॉल किया। डिस्ट्रॉस्ट का अर्थ क्या होता है, डिस्ट्रॉट का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा चिंता में होना। और यहाँ पे क्या थी, मिसेस पम्फ्री बहुत ज़्यादा चिंतित थी, क्योंकि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा पा रहा था। वो अपने फेवरेट डिशेज को भी क्या कर रहा था, रिफ्यूज कर रहा था, लेने से मना कर रहा था। मीन्स वो क्रीम वगैरह भी अब नहीं खा रहा था,
बॉक्स का अर्थ क्या होता है? स्पेल्स, छोटा छोटा स्पेल। तो यहाँ पे इसको वोमिटिंग भी थोड़ी थोड़ी देर पे हो रही थी। और वो क्या कर रहा था? पूरे दिन लाइंग ऑन अ रग, मैट पर लेटा हुआ रहता था। और पेंटिंग का अर्थ होता है शॉर्ट ब्रेथ। तो ये, और इसको क्या हो रहा है? बहुत छोटा छोटा ब्रेथ भी हो रहा है। मीन्स इसे सांस लेने में भी क्या हो रही है? कठिनाई हो रही है। और ये अब बाहर जाने से भी मना कर रहा है। ये वॉक पर भी अब जाना मना कर दिया है। और डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और कोई भी काम अब ये नहीं करना चाहता है। मीन्स ही वॉज रियली सिक, वह बीमार पड़ चुका है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड. I suggested that he be hospitalized for about fortnight to be kept under observation. Here I refers to the doctor, means doctor had already a plan about the tricky. ट्रिकी के लिए इनके पास एडवांस में एक प्लान था। और क्या था वो? कि ट्रिकी को कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए, फॉर ए पीरियड के लिए इसको घर से बाहर रखा जाए। और इसलिए इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि ट्रिकी को अंडर ऑब्जर्वेशन में मीन्स हॉस्पिटलाइज करना जरूरी है। फोर्टनाइट का अर्थ होता है फॉर 15 डेज, और इसको 15 डेज के लिए हॉस्पिटलाइज करना जरूरी है, जिससे कि इसका ऑब्जर्वेशन हो पाए, इसकी देखरेख हो पाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। सून्ड का क्या होता है? फेंटेड ड्यू टू एक्सट्रीम इमोशन, बेहोश पड़ जाना। Here poor lady refers to his honor, means ट्रिकी की ऑनर को पुअर लेडी कहा गया है। और वो जैसे ही ये बात सुनती है कि ट्रिकी को क्या करना पड़ेगा? हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, वो ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी। क्योंकि वो जानती थी, वह भी श्योर थी कि अगर ट्रिकी उसे नहीं देखा तो ट्रिकी भी क्या हो सकता है? मर सकता है। इसलिए यहां पे कहा गया इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर ट्रिकी भी उसको नहीं देखा हर दिन तो ट्रिकी भी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। पाइन का अर्थ होता है मिस करना या लॉन्ग फॉर। बट आई टुक अ फॉर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्री विलिंग। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped in a blanket. So here, doctor was fully determined about how to save the tricky. He has a plan. यहाँ पे ट्रिकी को बचाने का उनके पास एक प्लान था, और वो उस चीज के लिए क्या थे? डिटरमाइंड थे। क्योंकि ट्रिकी क्या था? बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, और उसको बचाने का सिर्फ वही एक रास्ता था। और बिना किसी देरी के, विदाउट डिले, डॉक्टर ने क्या किया? उसको वहां से लेके चल दिए। फॉलोड बाय मिसेज पम्फ्री, और पीछे से क्या हुआ? मिसेज पम्फ्री भी उनको फॉलो करने लगी और जोर जोर से रोने लगी। विलिंग मीन्स क्राइंग लाउडली। लेकिन यहां पे डॉक्टर ने क्या किया? वो आगे अपनी गाड़ी के तरफ बढ़ गए, और वहां पे लिटिल डॉग को क्या किया गया? ब्लैंकेट में इसको लपेट कर अपने साथ लेकर चल दिए। द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड रस्ट इन एंड आउट, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुजन्स, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. यहाँ पे क्या हुआ? सभी जितने भी वर्कर थे वो सब कोई अपने काम पे लग गए। सभी नौकर अंदर बाहर करने लगे। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? सबको पता चल गया जो अब ट्रिकी हॉस्पिटलाइज हो रहा है, इसलिए उसके डे का बेड, उसके नाइट बेड, उसका फेवरेट कुजन्स, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सुपर बॉल, सब कुछ देने की कोशिश कर रहे थे। और डॉक्टर जैसे ही ये बातें रियलाइज कर रहे थे कि इनकी गाड़ी क्या होगी, इन सभी सामानों को ढो नहीं पाएगी, वो क्या किए? तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दिए। एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस पम्फ्री विथ अ डिस्पेयरिंग crying threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. और यहाँ पे जैसे ही मिसेस पम्फ्री को लगा कि अब गाड़ी स्टार्ट हो गई और चलने को हो रही है, वो बहुत जोर से क्राइंग, उनको, क्योंकि अब उनको लगा जो अब ट्रिकी क्या है? जा रहा, हॉस्पिटलाइज हो रहा। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एन इमोशनल बॉन्डिंग इन बिटवीन अ ट्रिकी एंड
मिसेस पॉम्फ्री। और उसने क्या किया, बहुत जोर से गाड़ी के विंडो की तरफ ट्रिकी का कोट फेंका। और यहां पे डॉक्टर क्या थे, जब कॉर्नर में गाड़ी को मोड़ रहे थे तो उन्होंने मिरर में क्या देखा कि सब लोग क्या कर रहे हैं, रो रहे थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad. I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. और जब रास्ते पर जा रहे थे तो डॉक्टर ने अपने बगल के सीट पर देखा। ग्लांस का अर्थ होता है देखना, पैथेटिक का अर्थ होता है मिजरेबल, बेचारा जिसको दुख हो रहा हो, और गैस्पिंग का अर्थ होता है सांस लेने में तकलीफ होना। तो वहां पर पैथेटिक एनिमल कौन था, ट्रिकी था। और ट्रिकी के सर पर हाथ फेरते हुए वो कोशिश कर रहे थे, हाथ फेर रहे थे। और ट्रिकी बहुत ही हिम्मत से ब्रेव एफर्ट करके अपनी पूंछ को हिलाया। वेग हिज टेल मींस अपनी पूंछ को हिलाना। और इन्होंने कहा, पुअर ओल्ड लैड, आई सेड यू हैव नॉट अ किक इन यू, तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं। सो दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट of this chapter. You need to solve out these questions from your own self. And if you have any problem, please write down in your comment box. Okay, and very soon I am going to upload the second part of this story. And if you really like this video, then please subscribe and share. Thanks a lot.